हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अनोटमी की पाठशाला। सो लंग्स को ब्रॉडली हम 3 वीडियोस में करेंगे। फर्स्ट इज द lung 1 is external features of lung. In lung 2 we have the bronchopulmonary segment BPS and the bronchial tree. In third we will do the blood supply of lungs, lymphatic drainage of lung and innervation of lung, that is the nerve supply of the lung. So 3 वीडियोस में लंग को हमने डिवाइड किया है। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ लंग्स। थर्ड वीडियो में हम डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। That is the firstly we will do the blood supply of the lung, then lymphatic drainage of the lung and nerve supply of the lung. First of all, blood supply of the lung. Vascular supply. Vascular supply में दोनों arterial as well as venous drainage होती है। So lungs की अगर स्पेशलिटी करें तो lungs में दो तरह की blood supply होती है, that is the pulmonary vessels and bronchial vessels. तो दो तरह की vessels मिलेंगी, pulmonary artery and vein, bronchial artery and vein. Now pulmonary vessel काम करती है in the pulmonary circulation and bronchial vessel like the systemic circulation. That means pulmonary circulation का काम होता है ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना। दैट मीन्स जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है टुवर्ड द लंग्स, ये हम अभी डिटेल में करेंगे, ये लंग्स में आएगा, देन लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होगा, वापस जाएगा टुवर्ड द हार्ट। सो थ्रू द pulmonary arteries this deoxygenated blood will reach to the lung tissue through the pulmonary veins. We know here we have opposite, so vein में यहाँ पे oxygenated blood होता है, artery में यहाँ deoxygenated blood होता है. So through the veins, pulmonary veins, the oxygenated blood will go back to the left atrium. This is pulmonary circulation. Second, जैसे हर organ की circulation है, lungs की भी अपनी circulation होगी, तो lungs को जो खुद को ब्लड सप्लाई मिलती है, जो लंग्स को ऑक्सीजनेशन मिलेगी लंग्स के टिश्यू को, दैट इज थ्रू दी ब्रोंकियल वेसल्स। सो लंग्स में हम दो तरह की सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी वेसल्स। व्हाट आर दीज पल्मोनरी वेसल्स? हम हार्ट को अगर देखें, अगर कट सेक्शन देखें हार्ट का, तो वी हैव द लाइक दिस कट सेक्शन ऑफ हार्ट। सो वी हैव here right ventricle. From right ventricle pulmonary trunk will take origin. ये ट्रंक दो में डिवाइड होगी, राइट एंड लेफ्ट pulmonary arteries. So these are right and left pulmonary arteries जिनमें deoxygenated blood है। अब ये deoxygenated blood आगे हम करेंगे लंग्स में जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेशन होगी, then it will come back to the left atrium. So pulmonary vessels are first of all the artery, they formed by the pulmonary trunk. It will give right and left pulmonary artery जो हाइलम के थ्रू लंग में एंटर करेंगी। In the lung they will divide, they will give branches as per segments and subsegmental branches and they will take part in the pulmonary capillary system. मतलब क्या हुआ इसका? अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में these are the pulmonary arteries. So pulmonary artery respiratory tree के पास आकर they will divide like the terminal bronchioles like this. So ऐसे pulmonary arteries divide करेंगी. These arteries will give the arterioles. So ये arterioles देंगी like this along the our alveoli. So यहाँ पर respiration होगी, यहाँ पर gaseous exchange होगा और इन arteriole के बाद venules बनेंगे। इन venule से oxygenated blood वापस जाएगा toward the heart through the pulmonary veins. So these are the pulmonary vein. Bronchopulmonary segment में हमने इसको डिटेल में भी किया है। So ये pulmonary vein होती हैं जो connective tissue में होती हैं segment में। They will take back blood to the heart. और ये थी pulmonary arteries जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती हैं। वेन्स हमने अभी डिस्कस किया। दीज आर द pulmonary veins. दे आर टू ऑन ईच साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड दो होती हैं। वेन्स फॉर्म कैसे हुई? फ्रॉम द कैपिलरी सिस्टम। सो ये pulmonary कैपिलरी सिस्टम था, यहाँ से वेन बननी स्टार्ट हुई। नो वेन्स आर इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर आप देखिए वेन्स अपनी इंडिपेंडेंटली कनेक्टिव टिश्यू में ट्रेवल करती हैं, ये आर्टरी के साथ ट्रेवल नहीं करती। हियर यू कैन अप्रिशिएट, ये आर्टरी अपनी अलग से ट्रेवल करती है, वेन अलग ट्रेवल कर रही है। आर्टरी इज ट्रेवलिंग अलोंग द
रेस्पिरेटरी ब्रोंकस और टर्शियरी ब्रोंकस लाइक दिस, बट वेन सेपरेटली ट्रेवल करती हैं। देन नियर द हाइलम द पल्मोनरी वेसल्स, इनकी लोकेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द ब्रोंकल। सो ब्रोंकाई के अकॉर्डिंग इनकी कैसे है हाइलम के पास लोकेशन। तो वेन्स आर ऑलवेज एंटीरियर मीडियल देन द आर्टरी, आर्टरीज पोस्टीरियर मीडियल होती हैं, वेन्स एक्चुअली एंटीरियर इंफीरियर होती हैं, एंटीरियरली वेन होती हैं। वेन में हमने बोला था दो वेन्स होती हैं, वी हैव सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड वी हैव इंफीरियर पल्मोनरी वेन बायलेटरली दोनों साइड। तो सुपीरियर पल्मोनरी वेन इज एंटीरियर इंफीरियर टू द पल्मोनरी आर्टरी and inferior pulmonary vein is inferior to all the structure. That means जब हम anterior से posterior जाते हैं तो सबसे नीचे हमें inferior pulmonary vein मिलती है सबसे पहले। Like this we have the inferior pulmonary vein, then we have the superior pulmonary vein. वीडियो नंबर 1 में हमने root of the lung and hilum of the lung ड्रा भी किया है, वहां हमने ड्रा किया। Next is bronchial vessels. Now bronchial vessels, these are the vessels or the network of the blood vessels which will supply oxygenated blood to the tissue of the lung. तो ये लंग के टिश्यू के लिए, इवन ब्रोंकाई के ब्रोंक्यूल्स को जो ऑक्सीजनेशन चाहिए, उनको अपनी ऑक्सीजनेशन चाहिए, उसके लिए जो ब्लड सप्लाई है दैट इज थ्रू द ब्रोंकियल वेसल्स। इसमें अलग है, लाइक नॉर्मल जैसे हमारी सर्कुलेशन होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरह, उसकी तरह ये काम करती है, लंग को ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेशन ब्लड देती है। तो इसमें दो हैं हमारे पास, ब्रोंकियल आर्टरीज एंड ब्रोंकियल वेन्स। हियर यू कैन अप्रिशिएट आर्टरीज हमने रेड में लिखा है, दैट मींस यहाँ आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड है और वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी में अपोजिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज आर द आर्टरीज व्हिच इज ब्रिंगिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड टू दी लंग टिश्यू। तो लंग टिश्यू को ये ऑक्सीनेटेड ब्लड देंगे, सो दे आर ऑक्सीनेशन रिच, जैसे बाकी एरिया में होता है। सो लाइक दिस यू कैन अप्रिशिएट, दिस इज द आयोटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड है आयोटा से। सो यहाँ से इसकी ब्रांचेस आएंगी। राइट साइड में वी हैव वन सिंगल ब्रोंकियल आर्टरी, it is a branch of the third posterior intercostal artery. So third posterior intercostal artery जो होती है, इससे ब्रांच आती है राइट ब्रोंकियल आर्टरी। एमसीक्यू क्वेश्चन, लेफ्ट साइड we have two bronchial arteries and these are the branches of aorta, that is the thoracic part of the aorta देता है ये दोनों branches। upper and the lower branch, upper branch is at the upper end of T5 vertebra and lower is below the bronchus. So these are the bronchial artery. Each and every point here is the MCQ. So here you can appreciate right side bronchial artery single, left side we have two bronchial arteries upper and the lower. Next are the bronchial veins. So right and left दोनों side में bronchial veins होंगी जो lung से deoxygenated blood वापस लेके जाएंगी. So they will take deoxygenated blood back from the lungs and right side will drain into azygous vein. We know azygous is on right side. So right bronchial vein will drain into azygous vein, but left bronchial vein will drain into the left superior intercostal vein or accessory hemiazygous vein. So we have the accessory hemiazygous vein, और this is the accessory, नीचे वाली accessory hemiazygous vein होती है, तो इसमें आके ड्रेन करेंगे like this. So these are the bronchial vessels. तो हम फास्टली रिवाइज कर लें, हमने बोला these are the lungs. अब लंग्स में अपना टिश्यू होगा, पेरेन्काइमा होगी, एंड लंग में दो काम है, लंग को खुद को भी ब्लड सप्लाई चाहिए एज वेल एज जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उसको भी उन्होंने प्यूरिफाई करना है। तो लंग्स को जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो आता है थ्रू पल्मोनरी वेसल्स। सो वी हैव द पल्मोनरी ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, right pulmonary artery will enter into lungs and it will divide like this till the segments. अब जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं वो हमने बोला था डिफरेंट पार्ट से ब्रांचेस आएंगी, वो लंग्स के टिश्यू को सप्लाई करेंगी। तो अगर हम डीऑक्सीनेशन एंड ऑक्सीजनेशन दैट इज गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो वो कैसे होता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ द एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई के पास, इफ दिस इज एन एल्वियोलाई, अगर ये एक एल्वियोलाई है तो इस एल्वियोलाई की अपनी एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके साथ हमारे पास होता है वेसल आएगी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके चली है। ये आर्टरी
हमने फर्स्ट डायग्राम में भी किया था, कैपिलरीज बनाएगी, then these capillaries will form the venules and these venules will form the pulmonary vein, oxygenated blood. So ये कैसे हुआ? Deoxygenated blood through the pulmonary artery will reach till the respiratory tree. अब यही deoxygenated blood capillaries तक पहुंचा. Capillaries की epithelium we know it is the endothelium, that is also simple squamous epithelium. In alveoli it is also simple squamous epithelium. So जहां भी diffusion होनी है तो simple squamous epithelium होनी चाहिए. So pulmonary artery में we had the deoxygenated blood, CO2 level ज़्यादा था. Because of this epithelium the permeability is okay, तो यहाँ permeability अच्छी है तो diffusion हो सकती है. That means from the pulmonary artery carbon dioxide will move toward the alveoli. From the alveoli the oxygen will move toward this capillary system and then it will enter to the pulmonary vein. So in this way deoxygenated blood is now returned in the form of the oxygenated blood to the heart. So ऐसे ही oxygenated blood heart को जाएगा. This is the pulmonary circulation. What is this pulmonary embolism? Applied or not me of arterial supply. तो pulmonary embolism क्या होता है? If there is any thrombus in deep veins, that is deep vein thrombus, most commonly pelvic surgery में होता है. अगर pelvis की सर्जरी हुई है वहां पे deep vein में thrombosis हो गया है. अब ये thrombus vein में thrombus है तो venous blood के थ्रू आएगा, travel करेगा and it will enter in the heart, venous blood के थ्रू heart में enter करेगा. अब heart से ये thrombus हमें पता है right side we have the venous blood, so ये thrombus right side of the heart में पहुंच सकता है. यहाँ से it can travel to the lungs, so thrombus lungs में पहुंच सकता है from the right atrium and right ventricle and then क्लिनिक्स इसके आते हैं एज पर साइज ऑफ द थ्रोम्बस. थ्रोम्बस का कितना बड़ा साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लिनिक्स आ सकते हैं. अगर बहुत बड़ा थ्रोम्बस है देन इट विल ब्लॉक द पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा. सो इसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड यहाँ पे रुक गया है तो राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी, राइट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है एंड दिस इज द मेडिकल इमरजेंसी. देन इफ द एम्बुलाई इज स्मॉल, छोटा एम्बुलाई है तो ये एम्बुलाई सेगमेंट्स में जा सकता है, जो हमने सेकंड वीडियो में किया था, सेगमेंट्स में जा सकता है तो सेगमेंट को ये डिफेक्ट कर सकता है एंड इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट के पास आता है प्लूरिसिटी, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेस एंड हेमेप्टेसिस, दैट इज ब्लड इन द स्पूटम. सो दीज आर द सिम्टम आफ्टर सर्जरी या आफ्टर कोई भी लोअर लिम्ब में प्रोसीजर के बाद. इन चीज का हम ध्यान रखते हैं, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग एक्चुअली. Next is lymphatic drainage of the lungs. So lymphatic drainage of lungs. तो lymphatic drainage of lungs में भी जैसे बाकी organs की lymphatic drainage होती है वैसे इनकी भी lymphatic drainage है. So what lymph will do? lymph क्या करती है, remove करेगी excessive fluids, waste products, foreign particle. Also it will help into the transport of immune cells. तो immunity में भी help करता है. हर organ की तरह यहाँ भी इम्यून जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो ये बना होगा लिम्फ नोड्स का एंड लिम्फ वेसल्स का, जैसे हम पहले पढ़ते हैं वैसा ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स दो तरह की होती हैं, सुपरफिशियल, दीज आर नोन एज सब प्लूरल एंड डीप. सब प्लूरल, सब मीन्स नीचे, सो प्लूरा से नीचे, सो दीज आर लोकेटेड बिलो द विस्ट्रल प्लूरा. दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन. सो विस्ट्रल प्लूरा की बात करूंगा तो उसके नीचे पहले हमारे पास वेसल्स होती हैं. These vessels are known as the subpleural lymphatic vessels. ये vessels लंग के टिश्यू को सुपरफिशियली, जो लंग का प्लूरा है उसको एंड इसके पास का जो सरफेस है उसको ड्रेन करेंगी एंड दे विल ड्रेन द एयर सैक्स. जो लंग के स्मॉल एयर सैक्स होते हैं उनको भी ड्रेन करेंगी. दे विल कलेक्ट द lymph from here. They will transport this lymph toward the hilum. This is the area of hilum. So like this they will transport all the lymph toward the hilum like this. So जो भी डिप में नर्व्स हैं, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्रोंकल्स हैं, उनके रिलेशन में ये लिम्फेटिक्स होती हैं एंड दे विल ब्रिंग द lymph नियर द hilum. These are superficial. अगर डीप lymph vessels की बात करूं, so deep है, these are related to the
ब्रोंकियल ट्री। सो जो हमने ब्रोंकियल ट्री सेकंड वीडियो में किया था उसके ही अकॉर्डिंग होती हैं ये, लाइक पल्मोनरी आर्टरीज उनके साथ ये ड्रेन करती हैं। दे आर डीप, सो ये मेन टिश्यू, मेन पेरेन्काइमा ऑफ द लंग्स इज ड्रेन थ्रू द डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ये भी सेम ट्रेवल करेंगी टुवर्ड द हाइलम एंड दे कैन फाउंड ऑन द अलोंग साइड ऑफ द ब्रोंकियस। सो ये हमें ब्रोंकिया की दोनों साइड मिलती हैं। लाइक दिस वी हैव द सुपरफिशियल एंड डीप वेसल्स, they are traveling toward the hilum. So near the hilum we have the lymph nodes. These are the hilar lymph node. So main lymph node lungs के होते हैं hilar lymph node. Main group of the lymph nodes है जिसमें superficial as well as deep दोनों vessels आके lymphatic vessels आके drain होती हैं. Next we have the intrapulmonary. Intra is अंदर. So they are located within the parenchyma of the lung. So lung की parenchyma के अंदर भी कुछ lymph nodes होते हैं along the bronchial tree. These are known as the intrapulmonary. Next are the paratrachea. Trachea के around we have the lymph nodes like this. So like this we have the lymph node, lymph vessels थी superficial and deep, इनसे lymph drain हुई आके lymph nodes में. अब next ये lymph कैसे drain होती है? That is the lymphatic flow. So superficial से deep से सबसे ये lymph drain हुई या तो hilar में या इंट्रापल्मोनरी या पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में. यहाँ से ये लिम्फ विल ड्रेन टुवर्ड दी ब्रोंकियोमीडियासनल ट्रंक. सो ब्रोंकियोमीडियासनल ट्रंक में ये इस साइड में लाइक along the both side of trachea like this lymph will travel, and on the right side the lymph will drain into the right lymphatic duct, and along the left side this lymph will drain into the thoracic duct. So याद रखना है लेफ्ट साइड वी हैव thoracic duct. इसी यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. thoracic duct चेस्ट में सिर्फ लेफ्ट साइड की लिम्फ को ड्रेन करता है, राइट वाला राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, उसको हम thoracic duct नहीं बोलते. सो नाम में डिफरेंस है. एंड आगे इनके दोनों डक्ट्स, लेफ्ट साइड वी हैव द thoracic duct, इट विल ड्रेन इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. सो वेनस ब्लड में लिम्फेटिक ड्रेन होगी. राइट साइड वी हैव द राइट lymphatic duct, it will drain into the right subclavian. So दोनों ने ड्रेन तो अपनी अपनी सबक्लेवियन वेन में ही होना है, कॉरस्पॉन्डिंग सबक्लेवियन में, but these 2 points are very important. Innervation or the nerve supply of the lung. So lungs की अगर nerve supply की बात करूं तो इनको autonomic nerve supply है, लंग की अपनी ANS nerve supply है जो कि फंक्शन करेगी, इसके रेगुलेट करेगी एयर फ्लो को थ्रू स्मूथ मसल्स, मसल की टोन को मेंटेन करती है. स्क्रीशन गोबलेट सेल से या सबम्यूकोजल ग्लैंड से स्क्रीशन में हेल्प करती है. एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी एज वेल एज द ब्लड फ्लो, इन सब में हेल्प करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो ये कैसे है? वी हैव द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक इज बाय द वेगस नर्व. सो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है लंग्स को. इसका काम है कंस्ट्रिक्शन. इट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन करती है लंग्स में. It is parasympathetic. It will constrict the smooth muscle and stimulate the secretion of the glands. It will the vagus की है nerve. It will also convey the sensory. So sensory fiber भी vagus से जाते हैं, parasympathetic भी vagus से जाते हैं. That means lung की expansion, कोई irritation या कोई foreign body present है lung में तो वो भी vagus ही stimulus देती है. Next is the sympathetic. Sympathetic nerve supply में we have the nerves, that is a thoracic sympathetic ganglion, that is from T1 to T5 और T6 तक जो है sympathetic chain जहाँ से आती है वहाँ से. These are the thoracic sympathetic ganglion and these sympathetic are bronchodilator. So ये आपको याद रखना है. They will relax the bronchiole, so they will open the bronchiole. They are vasoconstrictor. bronchioles पे opposite action होता है. So they are bronchodilator. Sympathetic are dilator, parasympathetic are constrictor. Sensory हमने बोल दिया, sensory supply भी वेगस के थ्रू जाती है. Then this sympathetic will help in the flow of blood and secretion of the mucosa. Airway में जो भी mucosa secrete हो रहा है वो sympathetic के अंडर कंट्रोल है. Pulmonary plexus होते हैं. We have two plexus, anterior and posterior pulmonary plexus. They are related to the hilum.
So hilum के anteriorly we have anterior pulmonary plexus, hilum के posteriorly we have the posterior pulmonary plexus. हमने जब फर्स्ट वीडियो में मीडियस एंड सरफेस ड्रा किया था, वहां हमने ये प्लेक्सिस ड्रा किए हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है एंटीरियर एंड लास्ट में एंटीरियर से पोस्टीरियर जाऊंगा. सबसे पहले एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस मिलता है, लास्ट में पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस बनता है. तो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस कैसे बनता है? ये स्मॉल है. इट इज फाउंड बाय द फाइबर्स ऑफ द वेगस एंड सिंपैथेटिक सर्वाइकल कार्डियक नर्व. सो इनके फाइबर यहाँ मिलेंगे. दिस इज एंटीरियर, दिस इज सुपरफिशियल. पोस्टीरियर भी सेम वेगस से बनता है, सम फाइबर ऑफ वेगस, सिंपैथेटिक कार्डिक ब्रांचेस फ्रॉम द सेकंड टू फिफ्थ और सिक्स्थ, सेकंड से सिक्स्थ सिंपैथेटिक गैंग्लियन वाले फाइबर्स एंड वेगस के फाइबर ये बनाएंगे पोस्टीरियर, सेकंड टू सिक्स्थ प्लस वेगस पोस्टीरियर. एंड सर्वाइकल, ये थोरेसिक है, सर्वाइकल एंड वेगस दे विल फॉर्म द एंटीरियर. Cervical and vagus will form anterior plexus and thoracic and vagus will form the posterior plexus. कार्डिक प्लेक्सिस आप पढ़ रहे हो, ये कार्डिक प्लेक्सिस के साथ रिलेटेड है. सो जब हम कार्डिक नर्व सप्लाई या कार्डिक प्लेक्सिस पढ़ेंगे तब हम ये दोबारा डेप्थ में फिर से करेंगे. सो लेफ्ट प्लेक्सिस will also receive the branches from recurrent laryngeal nerve because we know left side we have the recurrent laryngeal nerve like this. तो लेफ्ट साइड वाले में recurrent laryngeal nerve भी साथ में थोड़े अपने फाइबर्स देती है. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it or share it.